اچھا غازی صاحب، ہمارے ہاں جو اہل القرآن کے نام سے جو گروہ اٹھے، عبداللہ چکرالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علامہ پرویز صاحب دوسری لائن کے تھے، لیکن تھے وہ بھی قرآنیون میں. عرب دنیا میں ایسے کچھ لوگ اٹھے ہیں، ایران سے بھی کچھ ایسے لوگ اٹھے جو حدیث کی حجیت کے انکاری تھے. تو آپ کے اوپر بھی کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے جنہوں نے بہت اچھے سے نہیں پڑھا، یا جن کو ان کو یہ لگتا ہے کہ آپ بھی اسی طرح سے القرآنیون میں سے شامل ہے. تو کیا ان منکرین حدیث جن کو کہا جائے تو اس میں اور آپ میں پھر بنیادی فرق کچھ ہے؟ کیونکہ وہ بھی تو حدیث کو دین کا کوئی ماخذ یا سورس نہیں مان رہے، آپ بھی یہی مان رہے کہ مستقل بذات احکامات وہاں سے اخذ نہیں ہوں گے. جو لوگ میرے بارے میں یہ بات کہتے ہیں، میں بہت معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، نہ وہ مجھے جانتے ہیں نہ ان کو جانتے ہیں. اگر وہ دونوں کو پڑھتے، دونوں کے موقف کو متعین کرتے، تو وہ زمین و آسمان کا فرق دیکھتے. یہاں میں نے پہلے عرض کیا کہ مستقل بالذات اور غیر مستقل بالذات احکام کی فہرست بنا کے بھی میں نے اس طریقے سے کسی روایت کو یاد نہیں کیا. میں تو عرض کر رہا ہوں کہ روایات میں سرے سے بات ہی بیان نہیں ہوئی. یعنی جو روایات کے رد و قبول کے محدثین کے اصول ہیں انہی کو برتا ہے، جو درایت کے ان کے اصول ہیں انہی کا اطلاق کیا ہے. اختلافات فہم میں ہوئے، وہ جی قرآن مجید میں بھی ہوتے ہیں. یعنی قرآن مجید کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ہم جب سمجھنے بیٹھتے ہیں تو ایک آیت کو آپ ایک طرح سمجھتے ہیں، ایک دوسرا آدمی ایک دوسرے طریقے سے سمجھتے ہیں. میں سن رہا تھا کہیں ایک صاحب بیان فرما رہے تھے کہ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ قوم لوط سے پہلے کسی کے ہاں فلاں فلاں برائی نہیں ہوئی. تو ظاہر ہے کہ میں اگر اس سوال کا سامنا کروں گا تو میں سب سے پہلے یہ پوچھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو کہیں نہیں کہا. ما دو جگہوں پر، سبقکم بها احد من العالمین کہا ہے نا. جی دونوں جگہ آپ غور فرمائیے، وہ قول لوط کی حکایت ہے. تو کیا میں اس جانب توجہ نہیں دلاؤں گا؟ نہیں تو قول لوط کیا مطلب وہ غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں، غلط سوال نہیں. پیغمبر اپنے علم کے لحاظ سے کسی چیز پر اپنے تاثر کا اظہار کرے گا، اللہ اپنے علم کے لحاظ سے کرے گا. وہ بات غلط نہیں ہے. تو ایک پیغمبر ایک اللہ نے وہاں پیغمبر یہ تو نہیں اپنے کہا نا غامدی صاحب. جی جی سوری، آپ بتائیں جی. ایک پیغمبر جو برائی دیکھتا ہے یا اس برائی کے بارے میں جو اس کا علم ہے یا اس کی معلومات ہیں، اس کی بنیاد پر ہی بات کرے گا نا. قرآن مجید میں کئی جگہوں پر لوگوں کے اقوال حکایت کیے گئے ہیں اور بلا تبصرہ. مثال کے طور پر عورتوں کے بارے میں مشرکین کا قول نقل کیا گیا ہے، اور میں ینشا فی الحلیہ، نشأ فی الحلیۃ وهو فی الحسام غیر مبین. اس میں کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا. بہت سی جگہ ہیں، میں دسیوں مثالیں دے دوں گا. تو قول کی یا حکایت ان کی گئی. کید کن عظیم، عزیز مصر کا جو قول تھا. جی ہاں. تو یہاں ہاں. پر قوم لوط کو جب حضرت لوط نے اس برائی میں مبتلا دیکھا تو انہوں نے یہ تبصرہ کیا اس کے اوپر. تو وہ اپنے علم کے لحاظ سے ایک تبصرہ کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ میں کروں گا تو ایسے ہی کروں گا. میں اپنی قوم کے بارے میں کسی موقع پر کہہ سکتا ہوں کہ تم لوگ جن خباستوں میں مبتلا ہو، ہم نے تو آج تک کسی قوم کو نہیں دیکھا. یہ میرے علم کے لحاظ سے ہے. یہاں دیکھا کا لفظ بھی اصل میں تاریخ میں کیا ہے، کیا سنا ہے، کیا روایات ہیں، یہ چیز ہے. دوسری چیز توجہ دلاؤں گا کہ انہوں نے قومی حیثیت سے اس جرم کا ذکر کیا ہے، اور یہ دونوں اسالیب ادب میں مسلمہ اصول ہیں. یعنی جب ہم کسی قوم کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں تو قومی اعتبار سے یہ دیکھتے ہیں کہ اس قوم میں کیا چیز یا کیا جرم ہے یا کیا برائی ہے یا کیا خرابی ہے، اس پر اسی طریقے سے تبصرہ کرتے ہیں. وہاں فرد زیر بحث ہی نہیں ہوتا. تو اگر مثال کے طور پر قومی تاریخ میں یہ مثال ملے کہ فلاں اور فلاں جگہ پر 4,000 سال پہلے یا 5,000 سال پہلے یا اس سے بھی پہلے ایک پوری کی پوری بستی اسی خرابی میں مبتلا تھی، وہ بھی اسی طریقے سے اپنی مجلسوں میں اپنی کلب بنا کے اس جرم کا ارتکاب کرتے تھے، ان میں بھی اس کو چھپانے کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی تھی. ان میں بھی اگر کسی شخص کے ہاں خوبرو لڑکے مہمان آ جائیں تو باقاعدہ وہ ان کو بالجبر اس سے حاصل کرنے کے لیے آ جاتے تھے. تو اگر یہ داستان کہیں سے مل جائے گی تو پھر قول لوط پر بھی اعتراض کرنے کی گنجائش ہوگی. یہ بات کہی نہیں گئی کہ فرد کی حیثیت سے کیا یہ جرم پہلے ہوتا تھا یا نہیں ہوتا، یہ زیر بحث ہی نہیں.
तो दोनों पहलुओं से मैं अब उस शख्स के साथ ये बात करूंगा, ये मेरे और उसके दरमियान फहम का इख्तलाफ है। फहम का इख्तलाफ कुरान में भी होता है, रिवायत में भी होता है। बाज औकात आदमी गलत फहमी की वजह से एतराज बना लेता है, तो आप बताते हैं कि इसको इस जाविये से देखा जाएगा, इस तरह इस आयत को समझा जाएगा। तो ये सब चीजें रिवायात में भी होती हैं। तो मैंने अर्ज किया कि रिवायात के फहम में बहुत सी चीजों में मुझे रिवायती इल्म से इख्तलाफ है। ये जो एतराजात सीरीज है इसमें मैं यही बयान कर रहा हूँ फहम में। अभी देखिए, मैंने मीज़ान में जो सबा अहरूफ की रवायत है और बड़ी मशहूर रवायत है, उस पर सख्त तनकीद की है, लेकिन एतराजात सीरीज में उस रवायत के बारे में ये बताया है कि इसमें किस तरह का खल्त मल्त होने का मामला हुआ है। ये दो अलग अलग वाकयात को रावियों ने एक जगह बयान कर दिया है, जमा हो जाने से वो नाकाबिल फहम हो गई है। तो ये सब मामलात रिवायात से मुतल्लिक मुहद्दिसीन भी बयान करते हैं, उलमा भी बयान करते हैं। आप कोई बड़ी किताब उठा लीजिए, तहावी की मुश्किल आसारी उठा लीजिए, उसमें ये सब बहसें आपको मिल जाएंगी। तो इस नौयत की बहसें आपको मेरे यहाँ भी मिलती हैं, लिहाजा यहाँ कोई बुनियादी इख्तलाफ उस नौयत का सिरे से है ही नहीं। ये हजरात जिनका आपने हवाला दिया है उनका मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो कुरान मजीद को जिस जाविये से देखते हैं उस पर मैं तनकीदात कर चुका हूँ, और ये बता चुका हूँ कि कुरान मजीद को या उसकी जुबान को देखने का ये तरीका ही सही नहीं है। उस्ताज इमाम का तबसरा नकल कर चुका हूँ कि उन्होंने परवेज साहब के बारे में ये फरमाया था कि ये अरबी जुबान जो ये बयान करते हैं इन्होंने घर में बैठ के बनाई है। तो हमारे तो उनके साथ इख्तलाफात की नौयत सिर्फ हदीस में नहीं है, सुन्नत में नहीं है, कुरान में भी बहुत शदीद। लेकिन खान साहब, मैं यही आपको, जो आपका वो लेक्चर था बहुत पुराना है, और मैंने अपने तालिब इल्म की तरह जितना आपको पढ़ा सुना, तो उसमें अहलुल कुरान की बुनियाद, उसके ऊपर एक मुस्तकिल उस तरह की कोई और आपकी तनकीद नहीं, वही मैंने आपसे गुफ्तगू सुनी। फिर बात है वो किताबी शक्ल में भी वो शाये हुआ। तो उसके अंदर आप अल्लामा परवेज साहब पे जो तनकीद फरमाते हैं ना, तो उसमें आप हदीस और फला इन चीजों पे जा ही नहीं रहे। आप ये कहते हैं कि उनका जो तरीका फहम कुरान है वो गुमराही पर मबनी है। लफ्ज जलालत आपने वहां पर इस्तेमाल किया अपनी गुफ्तगू में, और वो तहरीर में भी मौजूद है। तो वहां पर आपने उसको बिल्कुल ही अहमियत नहीं दी ना, कि वो हदीस का इनकार फलां। तो इससे भी लोगों को ये तासुर बढ़ता है कि शायद आप भी कुरानी अहलुल कुरान से ताल्लुक रखने वाले उसी फिक्र से करीब है, इसलिए शायद गलतफहमी ये भी एक वजह है कि आप सिर्फ उनके फहम कुरान की बुनियाद को उड़ा दिया, या उसके ऊपर आपने तनकीद फरमाई, लेकिन अहादीस की हुज्जियत और उस हवाले से आपने बिल्कुल ही बात नहीं की। उसको आप गुमराही ये ही नहीं समझ रहे। ये लतीफ सी बात ही समझिएगा। यानी अगर कोई अल्लाह का इनकार कर दे तो पैगंबरी पर क्या गुफ्तगू करूं उसके साथ। चले, ठीक ठीक। लेकिन वैसे वो लोग तो ये बहुत शिद्दत से कहते हैं ना कि हम कुरान को, जैसे आपने भी जो अपने उसूल मबादी में मीजान और फुरकान के तहत भी जो कुछ लिखा, तो उस गिरोह का भी यही दावा है कि हमारे लिए कुरान ही मीजान और फुरकान है, और जो कुछ दीन के तौर पर खुदा ने हमसे मुतालिबा किया है वो इस दफतेन में महफूज है। इसके अलावा कोई भी चीज आती है तो हम कुरान पर परख के देखेंगे, अगर वो कुरान के मुताबिक है तो फबीहा, नहीं तो हम उसको रद्द करेंगे। तो ये उसूल बिल्कुल आप समझते ठीक नहीं है उनका, मजमू अहलुल ये कुरान का। ये इसलिए ठीक नहीं है। देखिए, कुरान असल है। कुरान मजीद पर कोई चीज हुकूमत नहीं कर सकती। कुरान में कोई चीज तरमीम इजाफा नहीं कर सकती। कुरान मजीद हतमी हुज्जत है। वो फैसला कर देगा तो हर एक को उसके सामने सरे तस्लीम कम करना है। उसके मुकाबिल में कोई चीज नहीं पेश की जा सकती। ये बातें तो कही जा सकती हैं, लेकिन ये कि कुरान मजीद पूरे दीन को अपने माबैन दफ़तैन लिए हुए है, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात भी है और ये कुरान के खिलाफ भी। कुरान मजीद ने तमाम पैगंबरों का नाम लेकर सूरह अनाम में एक एक को गिना और फिर फरमाया फबहुदा हम मुक्तदे। ए पैगंबर, जो हिदायत हमने इन पैगंबरों को दी थी आपको उसकी पैरवी करनी है। इसी तरह सूरह नहल में ये कहा कि इब्राहिम का दीन दीन हनीफ था, और हम तुमको भी ये हिदायत कर रहे हैं कि यानी तबे मिल्लत इब्राहिम हनीफा। तो अब जाहिर है कि यहाँ पर पैगंबरों की पूरी रिवायत की पैरवी की हिदायत कर दी गई। यानी जो कुछ भी दीन की रिवायत पहले से मौजूद है
रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत की गई है कि आपको उसकी पैरवी करनी है, तो मेरे नज़दीक सुन्नत अपनी असल के लिहाज से कुरान का इम्तिसाल अमर है। जी लिहाजा सुन्नत को अलग करके अगर दीन के अवामिर और नवाही की कोई फहरिस्त बनाई जाएगी, तो मेरे नज़दीक वो दीन का नाकिस तस्वुर पैदा करेगी। बल्कि मैं इससे आगे बढ़ के ये कहता हूँ कि कुरान मजीद ने हमें जिस दीन पर अमल का पाबंद किया है, यानी एक तो अकायद है, लेकिन जी अमली तौर पर जो अहकाम दिए हैं वो खा अखलाकी अहकाम है और खा वो कानूनी नौयत के अहकाम है, उनकी फहरिस्त बना लीजिए और फिर देखिए कि हमारी जिंदगी में सुन्नत का हिस्सा कितना है और कुरान का कितना है। तो आप देखेंगे कि कानूनी मामलात में सुन्नत का हिस्सा 80% से ज्यादा है। यानी हम जिस दीन पर अमल करते हैं, तमाम इबादत सुन्नत ही से मिली हैं। कुरान किसी इबादत को अव्वलन अपने यहाँ बयान ही नहीं करता, उसके यहाँ वो एक वाकई चीज की हैसियत से जेर बहस आती है। वो या उसकी ताकीद करेगा, या उसके बारे में कोई वजाहत करेगा, या उससे मुतल्लक किसी सवाल का जवाब देगा, या कोई तरमीम तगैयुर करना है हालात के लिहाज से तो वो बयान कर देगा। मैंने हज के मामले में 16 बिदात गिनवाई हैं जिनको कुरान मजीद ने बयान किया और बताया है कि हम इसकी इसलाह कर रहे हैं। लेकिन हज उम्रा इसकी इब्तदा कुरान से नहीं हुई, वो पहले से मौजूद है। आप कुरान मजीद में हज उम्रा का बयान निकाल के देखिए, बिल्कुल वाजे हो जाएगा कि वो मौजूद चीज के बारे में गुफ्तगू कर रहा है, जानी बिल्कुल। पहचानी चीज के बारे में गुफ्तगू कर रहा है, जिसके मनासिक से लोग वाकिफ हैं, जिसकी रवायत से लोग वाकिफ हैं। यही सारी इबादत का मामला है। इतकाफ का जिक्र ऐसे ही कर रहा है, यानी हरम की तामीर के मौके पर यह कह रहा है कि इसको इतकाफ करने वालों लिल के लिए आकिफ। पाक रखा जाए, लिलाकिफीन। इसी तरह का मामला आपको रोजे के मामले में मिलेगा। इसी तरह की सूरत हाल बाकी इबादत में। माशरत का मामला यही, मैं बता सकता हूँ कि तलाक के अहकाम और इस तरह की चीजें सब की सब पहले से मौजूद चीजों का बयान है। जी यानी वो खुद उनके अल्फाज से वाजे है, उनके पस मंजर से वाजे है, उनके सियाको सबाक से वाजे है। तो माशरत का बड़ा हिस्सा, खुरोनोश से मुतल्लक अहकाम, वो भी पहले से मौजूद है। उनसे मुतल्लक चंद मुश्तबहात पर कुरान मजीद ने गुफ्तगू की है और लोगों को तंबीह की है कि तुम क्या गलतियां कर रहे हो और क्या बिदात तुमने इसमें दाखिल कर रही है। आदाब और रसूम की जितनी चीज़ें हैं, ये तजहीज़ है, तकफीन है, ये खतना है, ये तथहीर बदन की चीज़ें हैं, वो गालिबन 16 या 17 अहकाम है। वो सब के सब सुन्नत में है। उनमें कुरान मजीद ने किसी चीज़ को भी मौजू नहीं बनाया, इल्ला ये कि हिकायतन किसी चीज़ का जिक्र हो गया हो। तो इस वजह से जिस दीन पर हम अमल करते हैं उसका तो बहुत बड़ा हिस्सा सुन्नति से मिला है। चुनाचे मैं उनकी इस बात को इब्तदा से इंतहा तक मिनल बिदाया इलल निहाया गलत समझता हूँ कि कुरान मजीद से बाहर कोई दीन मौजूद नहीं है। दीन का बड़ा हिस्सा बाहर मौजूद है। अलबत्ता कुरान उसकी ताकीद कर रहा है, उसका जिक्र भी कर रहा है, उसमें इस्लाह भी कर रहा है, उसमें बिदात की तरफ भी तवज्जो दिला रहा है। कुरान इस तरह उसका जिक्र करता है। और कुरान मजीद की यही चीज है जिसको सामने रखकर मैंने फिर जो उसूल मबादी में कुरान से मुतल्लिक बाब लिखा है, उसमें एक उन्वान ये है कि कुरान को तारीख के पस मंजर में रख के देखा जाए। जी उसमें आप पढ़ लीजिए। इसी तरह मैंने ये बताया है कि कुरान मजीद दीन की पहली किताब नहीं है, आखिरी किताब। जी ये क्यों बिल्कुल। उसूल के तौर पर जेर बहस आया है, ताकि लोग कुरान को पहली किताब के तौर पर न पढ़े। सारे अहले कुरान इसी तरह पढ़ते हैं। तो ये सब अच्छा चीजें हैं जिनमें मेरे बड़े इख्तलाफात हैं उनके साथ, मैं उनको बयान करता रहता हूँ। अच्छा काफी से अब ये जो मैं अहले कुरान और उसकी बात करते हुए मैंने कहा था सुन्नत के बेस में मैं आऊंगा, तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारे यहाँ मौलाना अब्दुल्ला चकड़ालवी साहब का ग्रुप है, जिसको बाकायदा वो अपने आप को अहलुल जिक्र भी कहते हैं, अहलुल कुरान, अब तो नहीं रहा मेरे ख्याल से। उनके यहाँ तो हमें ये उलझन बहुत ज्यादा नजर आई ना कि उन्होंने हर चीज कुरान से, तो उन्होंने रफरेदे नमाज के तरीके भी और रोजे की भी पता नहीं क्या क्या चीजें, तो वो एक बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कोई नई चीज बन गई है। और वो हदीस है बिल्कुल, वो फिर उनके बारे में कहा जाता है कि आखिर उम्र में वो बुखारी और मुस्लिम की हुज्जत के कायल हो गए थे। लेकिन जो हमारे पास अल कुरान का दूसरी उसकी जो दूसरी शाख है, जिसको हम परवेजी कहते हैं और जिसकी बुनियाद जो है अल्लामा असलम जराशपुरी की तरफ मंसूब है कि वो उनके उस्ताद थे अल्लामा साहब के। तो उसके अंदर हम ये देखते हैं ना कि जराशपुरी साहब ये कहते हैं कि भाई दीन असलन कुरान में है, और बाकी जो
چیزیں امت میں رائج ہے وہ عملی تواتر سے ثابت ہونا چاہیے. تو یہ والا موقف یعنی سنت سے مراد عملی تواتر ہے، یہ وزندار ہے نہیں ہے یہ بات. یعنی سنت سے مراد کیا ہے، اس کا جواب اور ہے. سنت منتقل کیسے ہوئی ہے؟ تو اچھا. منتقل ہونے کا ذریعہ عملی تواتر اور اجماع ہے. میں دونوں لفظ استعمال کرتا ہوں. اجماع علم کے لیے ضروری ہے، یعنی ان میں سے جتنی چیزیں منتقل ہو رہی ہیں اس کے ساتھ ان کا علم بھی منتقل ہو رہا ہے، تو اس کے لیے اجماع کا لفظ. اور یہ چونکہ عملاً منتقل ہو رہی ہیں تو تواتر. ہمارے ہاں اصول فقہ میں اگر آپ دیکھیں تو دو اور تعبیرات ہیں. یعنی ابن عبد البر نے بھی وہ تعبیر اختیار کی ہے، امام شافعی نے بھی کی ہے، اسی طرح دوسرے لوگ بھی. وہ کیا ہے؟ علم العامہ، نقل القافہ عن القافہ، یہ تعبیریں بھی ہیں. تو ان میں سے کوئی بھی تعبیر اختیار ہو سکتی ہے، لیکن یہ چونکہ زیادہ تر عربیت لیے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے ان کو ہم نے سادہ تعبیر میں اجماع اور تواتر کہنا شروع کر دیا، صحیح. ورنہ یہ ساری تعبیریں آپ کو مل جائیں گی. ان پر میں نے بڑی تفصیل سے اعتراضات سیریز میں گفتگو کی ہے، اور امام شافعی کی الرسالہ کے متعلقہ باب پڑھ کے سنائے ہیں. اسی طرح سرخسی کی اصول کے متعلقہ باب پڑھ کے سنائے ہیں، اور بتایا ہے لوگوں کو کہ اس میں کوئی ادنا اختلاف بھی میں نے نہیں کیا. جس حصے میں اختلاف کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا ہے. یعنی وہ حصہ جو اخبار احاد سے منتقل ہوا ہے اس میں ہے کیا، ایک اختلاف یہ ہے. اور دوسرا یہ کہ اس میں جو کچھ ہے اسے کہنا کیا ہے. وہ میں نے صحیح. عرض کیا کہ تفہیم و تبین ہے یا اسوہ حسنہ کا بیان ہے.